مولانا علی قادری نے حضرت سیدنا یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے 75ویں عرس شریف کے سلسلے میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عرس کی تیاریوں، انتظامات اور عوامی سہولیات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عرس شریف کے موقع پر دینی، روحانی اور سماجی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں علماء اکرام کے خطابات، ذکر و اذکار، دعا اور دیگر پروگرام شامل ہوں گے۔ اس موقع پر زائرین اور عقیدت مندوں کے لیے بہترین انتظامات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران مرکزی انجمن قادریہ کی جانب سے ایک مفت ملٹی اسپیشلٹی میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا بھی اعلان ہوا ہے۔ اس میڈیکل کیمپ میں مختلف شعبوں کے ماہر ڈاکٹروں کی خدمات فراہم کی جائیں گی، جبکہ مریضوں کو مفت طبی مشورے اور ضروری سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ مرکزی انجمن قادریہ کے ذمہ داروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عرس شریف کی بابرکت تقریبات اور مفت میڈیکل کیمپ میں شرکت کر کے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ عرس شریف کا آغاز 14 جولائی سے ہوگا۔ بیورو رپورٹ، منصف نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی حضرات کا میں مشکور ہوں جنہوں نے انجمن قادریہ کی دعوت پر آج صدر دفتر مرکزی انجمن قادریہ تشریف لائے۔ آپ تمام کو زحمت دینے کا یہی مقصد ہے کہ ماہ جولائی 2026 میں مشہور و معروف حیدرآباد دکن کے صوفی بزرگ قطب الاقطاب حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا 75 سالہ عرس شریف ماہ جولائی میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ عرس کا آغاز 14 جولائی 2026 سے ہوگا اور 20 جولائی تک یہ عرس چلے گا۔ ویسے تو ہر سال حضرت کا عرس بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ ریاض مدینہ مصری گنج بارگاہ حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار میں 3 روزہ تقاریب منائی جاتی ہیں، لیکن اس سال 75 سالہ عرس ہونے کی وجہ سے 5 روزہ تقاریب کرنے کا خانواد حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار نے فیصلہ کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بزرگان دین، صوفیاء اکرام کے دربار میں ہر وقت اشاعت دین کا کام ہوتے رہا اور حقیقی معنی میں اسلام کیا ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کو صحیح معنی میں پہنچانے کی خانقاہوں سے کوشش کی جاتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ الحمدللہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ہندوستان تشریف لائے یہ کام سرزمین ہند پر چل رہا ہے۔ تو اسی ضمن میں 75 سالہ عرس کے ضمن میں مرکزی انجمن قادریہ کے زیر اہتمام 14 جولائی 2026 کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ایک میگا میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی اسی دن اسی مقام یعنی بارگاہ حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار میں منعقد کیا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ اولیاء اکرام کے دربار پر ہر وقت انسانیت کے لیے کام کیا جاتا ہے اور دین اسلام کی اشاعت کا کام کیا جاتا ہے۔ تو دین اسلام میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اور جیسے کچھ بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون کی کمی کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سارے مریض اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے سچے ولی قطب الاقطاب حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار کے عرس کے موقع پر انجمن قادریہ کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ غربا مساکین کے لیے میگا ہیلتھ کیمپ کا بھی اسی دن یعنی 14 جولائی کو انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ اس میگا ہیلتھ کیمپ میں کئی قسم کے جو اسپیشلٹیز ہے وہ تمام لوگ رہیں گے، جس میں کارڈیک کے لیے ہے، اور لنگز کے بھی ڈاکٹرز رہیں گے، ای سی جی کی سہولت رہے گی، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت رہے گی،
अभी मजीद जो भी हमारे सामने आएंगे इंशाल्लाह वो तमाम जो है चीज़ें रखेंगे और उस दिन फ्रेम और ऐनक भी जो है मुफ्त में तकसीम करेंगे और मेडिसिन भी जितने भी मेडिकल कैंप में ज़रूरत पड़ेगी जो भी लोग आकर के अपना चेकअप करवाएंगे उन तमाम को मेडिसिन भी जो है फ्री में दिए जाएंगे, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर से कंसल्टिंग का हो या मेडिसिन का हो। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि आई स्पेशलिस्ट भी रहेंगे और जो है कार्डियोलॉजिस्ट भी रहेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट भी रहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट भी रहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट भी रहेंगे, साथ ही साथ डेंटिस्ट भी रहेंगे। हम वहाँ पर डेंटिस्ट का भी इंतज़ाम कर रहे हैं और उनको जो कुछ भी ज़रूरत अगर बताने वाले को पड़ती है तो इंशाअल्लाह अल-बुस्तान हम उनको भी फ्री मेडिसिन वहाँ पर हम फराम करेंगे, क्योंकि ये जो है उर्स शरीफ हुजूर सैयदना यहिया पाशा सरकार का है। ये वो खानखा है हैदराबाद की, चाहे हुजूर सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की खानखा हो या हुजूर सैयदना यहिया पाशा सरकार की खानखा हो, यह जिंदा खानखा है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस खानखा से वाबस्ता हूँ, बल्कि अमली तौर पर खानखाहों में जो चीज़ की तालीम होना चाहिए, जो चीज़ की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद की ये दो बड़ी खानखाएँ हैं जहाँ पर आज भी अमली मैदान में काम हो रहा है, दर्स व तदरीस का काम होता है, इंसानियत के लिए काम होता है। और जो मर्दाना जनाने की जो हमारे पास, दूसरों पर मुझे तनकीद नहीं करना है, लेकिन उमूमन जो देखने में आता है कि आरास के मौके पर जनाने और मर्दाने का इंतज़ाम अलहदा नहीं होता है, लेकिन ये दो खानखाएँ ऐसी है जहाँ पर जनाना मर्दाने का बिल्कुल अलहदा इंतज़ाम रखते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि अज़रुए शरा यहाँ पर काम हो, कोई भी खिलाफ शरा काम नहीं हो। हालिया में कुछ लोग हैं जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा इस पर शर्मिंदगी है कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। तमाम की जिम्मेदारी है अहले खानखा की कि इस तरफ तवज्जो करें और ये खुराफात को अपनी अपनी खानखाहों से ख़त्म करें। बहरहाल मैं फिर एक बार आप तमाम से ये कहना चाहूँगा कि 14 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद दरगाह हुजूर सैयदना यहिया पाशा सरकार में रखा गया है और फिर उसी साथ साथ मेगा हेल्थ कैंप का भी जो है इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जहां पर तमाम अद्वियात मुफ्त में तकसीम की जाएगी और जो है आँखों का मुआयना किया जाएगा और उनको जो है ऐनक का भी जो है फ्रेम वगैरह तमाम मुफ्त में जो है वहाँ पर आपको जो है सप्लाई किया जाएगा। बहरहाल मैं तमाम हजरात से इस बात की गुजारिश करूँगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में भी हिस्सा ले और मेगा हेल्थ कैंप में भी हिस्सा ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि भाई दरगाहों के जुलूस संदल में कुछ ऐसी बातें हो जा रही है जिसकी तरफ से काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है, तो मैंने उनसे कहा कि हालिया में जो है एक बहुत ही मारूफ दरगाह हमारे शहर की है, उस दरगाह के जुलूस संदल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो बिल्कुल ही काबिल तनकीद है और जो है काबिल पकड़ है। हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते और वो जो दरगाह के जो मुतवल्ली है, जो वक्फ बोर्ड की जानिब से नामजद किए गए हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो ऐसे खुराफात, ऐसे बेहुदा हरकत पर आप इंस्टेंटली मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करें। देखिए उर्स का माने क्या है, उर्स क्यों करते हैं? उर्स इसलिए करते हैं कि साहिब मज़ार के तालीमात उम्मत मोहम्मदिया तक पहुंचा सके। उर्स के असली जो माने हैं, जो मकसद है, वो यही है कि जो साहिब उर्स है, जो साहिब मज़ार है, जो तालीमात दिए हैं, जो शरीयत और तरीक़त के जो रास्ते बतलाए हैं, वो रास्तों को, वो तालीमात को आम करें ताकि मुसलमान उस रास्ते पर चले। इसीलिए उर्स किया जाता है। उर्स जो है ढोल नगाड़े बजाने का काम नहीं है। उर्स का मतलब ढोल नगाड़े बजाना या मेला लगा देना, भीड़ भक्कड़ करना, ये उर्स के मकसद नहीं है। तो जहाँ कहीं भी ये चीज़ें हो रही है, उन दरगाहों के जिम्मेदारान को चाहिए कि वो इन हालात पर फौरी तौर पर काबू करें, क्योंकि आपकी ये हरकत से दूसरी खानखाहों पर हुरूफ उठ रहा है, दूसरी खानखाहें बदनाम हो रही हैं।
खानखा के माने जो है वो ये है कि एक आग का आवा है, उसके अंदर जब आप डालते हैं तो वो बिल्कुल ही साफ सुथरा होकर अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना, ये खानखा का मकसद है। खानखा में इस तरीके से आपको बंदगाने खुदा को तैयार करना है, ना कि सिर्फ शोर शराबा करना है। बहरहाल मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई इस मामले में नहीं बोलेगा तो फिर खानखाहों में जो बदनज़मियाँ हो रही है उसको सुधारेगा कौन? जितने भी गैर अकीदे के लोग हैं उनको तो आसानी से मौका मिलेगा। हम जो जुलूस संदल अपने बचपन से जो देखते आए हैं उसका यही रहा कि अल्लाह का जिक्र करते हुए रास्ते से चलते हैं और पंजतन पाक के नामों की तख्तियाँ हाथ में लेते हैं, क्योंकि खानखाह वालों का रास ताल्लुक मौला मुश्किल कुशा से होता है, क्योंकि सारे सिलसिले मौला मुश्किल कुशा की ज़ात में जम है। और चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो खादरी हो, चाहे वो सोहरवर्दी हो, जितने सलासिल है वो तमाम सलासिल मौला मुश्किल कुशा ही से आते हैं, उन्हीं में जम है। इसीलिए हम अहले बैत अताहार के तख्तियाँ लेकर के साथ चलते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज यकीनन बहुत खुशी की बात है कि हैदराबाद दक्कन की दो अजीम खानखाहों में हज़रत यहिया पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर जो 14 जुलाई को मुनक़िद होने जा रहा है मिसरीगंज रियाज़ मदीना में, तो इस ज़िमन में मौलाना हज़रत ग़ुलाम समदानी साहब गाज़ी अहले सुन्नत मौलाना सैयद अली क़ादरी साहब क़िबला की सरपरस्ती में उर्स मुबारक के मौके पर एक मेगा हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है। यकीनन मुझे भी सुनकर बहुत खुशी हुई कि मैं तो ऐसा किसी खानखा में आज तक इतना बड़ा जो मेडिकल कैंप लगाया जाता है नहीं सुना, लेकिन आज सुनकर मौलाना ने वे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस की, बताया कि उस दिन 14 जुलाई को दरगाह शरीफ यहिया पाशा मिसरीगंज में सिटी स्कैन का इंतज़ाम रहेगा और ख़वातीन के लिए जो अल्ट्रासाउंड का रहेगा, डेंटल का रहेगा, कार्डियोलॉजी का रहेगा और जो बड़े बड़े जो लंग्स का प्रॉब्लम जिन्हें हैं उनका रहेगा और बड़े बड़े टेस्ट वहाँ पे फ्री मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें कोई 1 रुपया नहीं चार्ज किया जाएगा। जो तमाम तर लोग बिला लिहाज मतलूब मिलत हमेशा की तरह उर्स 75 साल के मौके पर ये मुनक़िद किया जा रहा है। मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से, तमाम बिला लिहाज मज़हब मिलत लोगों से कि उस दिन दरगाह शरीफ यहिया पाशा हज़रत में उर्स के मौके पर जो मेगा इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया गया है मौलाना अली क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु अलैहि की सरपरस्ती में, उनकी जुस्तजू कोशिशों से, जो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीख़ का पहला ऐसा मेडिकल कैंप है जो किसी खानखा मुबारका में इतना बड़ा गरीब अफराद के लिए, हर किसी के लिए लगाया जा रहा है, जिसके अंदर शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को बड़े बड़े जितने भी जो टेस्टेस है पूरे फ्री किए जाएंगे, जिसके अंदर सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, पेट के अमराज है, दिल के अमराज है, जो दिमाग के अमराज है, किडनी के अमराज है, साथ ही साथ फिर उन्हें दवा भी जो मुहैया की जाएगी फ्री, 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ अल्लाह की राह में ये बुजुर्गों के वसीले से ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जी ये जहाँ तक मीडिया के ज़रिए ये मैसेज जाएगा वहाँ पे हज़ारों की तादाद में भी अगर आवाम आएगी तो उनका तमाम तर जो है मेगा डोनेशन जो ब्लड डोनेशन कैंप में जो वो भी हिस्सा ले सकेंगे और हेल्थ का जो कैंप मुनक़िद किया गया है वहाँ पे तमाम तो लोगों के फ्री टेस्ट मुनक़िद किए जाएंगे। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है, हैदराबाद से क्या कर सकते वो इंशाअल्लाह तबारक तआला 14 तारीख के दिन यहिया पाशा सरकार के उर्स के मौके पर आप लोग यहाँ पर आकर अपने बड़े से बड़े टेस्ट फ्री और बिल्कुल मुफ्त दवाओं के साथ लेके करा के जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि तमाम हजरात जो मीडिया के तहत ये बात फैलेगी और तमाम हजरात इस दिन और तारीख को नोट करेंगे और दरगाह शरीफ यहिया पाशा के उर्स के मौके पर इन फ्री टेस्टों से इस्तेफादा हासिल करेंगे। शुक्रिया, खुदा। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।